Students, it's me Dinesh Mishra and I welcome you in online classes of UBPS, and this is the in continuation with the lecture number 1 for class 10th, and in which we have picked up the topic the rise of the very first chapter of your textbook, the rise of nationalism in Europe. We shall continue this topic. But before we starting the next unit of this chapter, we recall the previous lecture in which we have learned about the paintings to be painted by Frederick Sury. तो सबसे पहले हम आज ये जानेंगे, टेक्निकली इस सब्जेक्ट को लेंगे और बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग तरीके से कि हमारे जो है समझ में बेहतरीन ढंग से चैप्टर आ जाए, और बहुत ही टिपिकल चैप्टर है आपके सब्जेक्ट का। तो इसमें आप लोगों ने जो फ्रेडरिक सूरी के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने एक इमेज जो है पेंट की थी, तो व्हाट वाज द मेजर एलिमेंट्स, व्हाट वर द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स दैट वर इमेजिन्ड बाय द फ्रेडरिक सूरी to represent before the world. The world he created at that time in 1848. 1848 में जिस दुनिया की कल्पना उन्होंने की थी, वो किस तरह की दुनिया चाहते थे, उस इमेज में दर्शाया गया था। And you know that before this painting was created by Frederick Sury, the French Revolution had already been taken place. उससे पहले ही फ्रांसीसी क्रांति हो चुकी थी 1789 में। तो अपने दिमाग में इस चैप्टर को पढ़ते समय एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट दैट ब्रॉट अबाउट अ रेवोल्यूशनरी चेंज इन द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अराउंड द वर्ल्ड इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन, बिकॉज टुडे the concept of modern state, that is democratic world, that is the concept of democracy, democratic republic, जिस भी नाम से आप कहिए, लोकतांत्रिक गणराज्य की जो आधुनिक संकल्पना है, उसके सारे तत्व, उसके कोर वैल्यूज फ्रांसीसी क्रांति के कोख से जन्म लिए हैं। तो जब भी आप इस चैप्टर को पढ़िए, जो भी स्टोरी आप पढ़ेंगे, उसके मूल में कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन है। तो सबसे पहले आप देखिए कि फ्रेडरिक सूरी ने जिस इमेज को ड्रा किया, उस इमेज के द्वारा व्हाट वर द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ दैट इमेजिनरी वर्ल्ड that is called utopia. Utopia means an idealistic world which really does never exist. एक ऐसी काल्पनिक और आदर्शवादी दुनिया जिसका भौतिक जगत में वास्तविक रूप में कोई अस्तित्व ना हो, उसको यूटोपियन इमेज कहते हैं। हालांकि एक यूटोपिया था, बट इट encompasses and inculcated the values of democratic states, and that were already being created by the French Revolution. What were those elements? So first was the idea of equality. The image of the Frederick Sury emphasized that the equality must be upheld in all spheres of the human life, that is in political field, social field, as well as in सोशल फील्ड, इकोनॉमिक फील्ड एंड पॉलिटिकल फील्ड। तीनों जीवन के तीनों आयामों में इक्वालिटी का उन्होंने चित्रण किया कि जो दुनिया हो उसमें समानता हो, आर्थिक क्षेत्र में भी, सामाजिक क्षेत्र में भी और राजनीतिक। दूसरा एलिमेंट उनका क्या था? जस्टिस, न्याय। By the term justice, he means that all person must be without any discrimination should have equal access to all kinds of goods and services
they equally deserve all kinds of dignity. And the third one was liberty. And that means liberty have a Latin origin. It means to free. This word, the liberty, has been originated or emancipated from the term liberate, which means to be free. मुक्त होना, आजाद होना. Everyone should have freedom of faith, of belief, of expression, and of selecting for job or career. It must, and the most important of them was the freedom of expression, freedom of thought, विचारों की स्वतंत्रता, जॉब को चुनने की स्वतंत्रता. So this is the third element which Frederick Sury created through his painting. And the fourth one was fraternity, the concept or the idea of universal brotherhood. Fraternity, fraternity का मतलब है विश्व बंधुत्व की भावना. The idea of universal brotherhood means all the people of the world must be seen and be cooperated and should be mutually interacted like a family. एक परिवार की तरह पूरा विश्व है और सबको एक परिवार की भांति जो है एक दूसरे से सहयोग करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए. Besides these four core values of democratic state, the other things which were imagined by the Frederick Sury, they were the concept of a nation state. The fifth one was the nation state. Nation state. What is a nation state? That is the integration of the fragmented political territories that were divided into the cantons, duchies, principalities, that must be integrated into a single whole, and all the constituent elements, that is the peoples, must be loyal to the what we call motherland, fatherland, this तरह के the concept of la patrie and citoyen. All the citizens must be responsible. They must have developed a feeling of or the sense of belongingness to one region. उनके अंदर जो है एक ही राष्ट्र के प्रति जो है एक अपनेपन का भाव जो है उनके अंदर होना चाहिए. इस तरह की जो पॉलिटिकल टेरिटरी क्रिएट होगी जो फ्रेडरिक सूरी ने कल्पना की, उसका अर्थात नेशन स्टेट से, जिसकी जो है एक निश्चित पहचान हो, इट हैव एन यूनिक फ्लैग कोड, उसका अपना एक ध्वज हो, द नेशन हैड ए यूनिक नेशनल लैंग्वेज, हर नेशन स्टेट की एक अपनी जो है विशिष्ट भाषा होती है, एंड ऑल द पीपल्स आर ग्रुप्स ऑफ पीपल्स मस्ट बी टाइड अप विद ए शेयर्ड कल्चर, और उनकी एक सामाजिक संस्कृति हो जिसको सब लोग मिलकर आपस में जो है एंजॉय या एंटरटेन करते हो. तो द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट वाज अ काइंड ऑफ न्यू आइडिया that was painted by the Frederick Sury in 1848. And the next one was, what was imagined by Frederick Sury was that all nations must have unity and integrity. That is, the people are the integral part of a nation. राष्ट्र लोगों से मिलकर ही राष्ट्र बनता है. Unless unity and integrity be held among the peoples, no nation can be survived. कोई भी राष्ट्र जो है वो राष्ट्र नहीं कहा जा सकता जब तक कि उसके अंदर एकता और अखंडता का भाव न हो. So these were the 6 elements, major elements to be carved out or painted by Frederick Sury in 1848. इतना आप अपने दिमाग में रखिए. इन 6 एलिमेंट्स में से 4 एलिमेंट ऐसे हैं that belong to the ideology of French Revolution that took birth or came up with the French Revolution. Equality, the concept of equality
the idea of justice, liberty, and fraternity. These were the major points or elements that brought about revolution in the France in 1789 before the painting to be created by Frederick Soury in 1848. तो आप यूँ समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं फ्रेडरिक सूरी ने जिस पेंटिंग को बनाया था उसमें जो है फ्रांसीसी क्रांति का बहुत बड़ा योगदान था। इतना आपसे क्वेश्चन हो सकता है, पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन बन रहा है, पॉइंट्स आउट द मेजर implications of image to be created by Frederick Soury in 1848। प्रश्न है कि आप फ्रेडरिक सूरी के द्वारा 1848 में क्रिएट की गई इमेज के निहितार्थ क्या है, उसके इम्प्लीकेशन क्या है, तो उसका आंसर यही होगा। दीज आर द इम्प्लीकेशन ऑफ द इमेज created by Frederick Soury in 1848 and if the question is of a long answer type, then you can explain the idea of equality, the idea of justice, the idea of liberty, the idea of fraternity, the concept of nation state and the unity and integrity of the country। तो इसको आप शामिल कर देंगे, ये क्वेश्चन आपका जो है कवर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं, देखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ नेपोलियनिक कोड, दैट इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द मेकिंग ऑफ नेशन। ये आपका दूसरा यूनिट है। द मेकिंग ऑफ नेशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन and the making of nation। French Revolution। Before we begin to study the contribution of French Revolution in the making of nation, it is very important for us to have a glance on the social, economic and political condition of France that was existing during the 19th century or in the last quarter of the 18th century। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो पाएंगे, आप दो चीज अपने दिमाग में रखिए। पहली चीज तो ये कि पूरा यूरोप, that was the entire Europe was politically fragmented into small principalities, local rulers and duchies, cantons छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। And the people, the only bond that was tying up the peoples from the different monarchical form of governance was only the idea of divine kinship, जिसको मैंने अपने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि मोनार्की की एक खासियत होती है कि ये दैवी जो है राजत्व के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो उस समय जैसे आपने एक जो है कहावत सुनी होगी, को नृप होय हमें कहानी, चेर छोड़ होबे न रानी। तो this was the very idea. The people were totally disappeared. They were in a despair, hopeless, and there were no chance to progress in the society. The entire social system was divided into three parts. You already know. That was the rich and the poor. That is, the citizens were active and passive. Active citizens and passive citizens. You have already read in your previous class.
पिछली कक्षा में आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन, रिच को हमने एक्टिव के अंडर रखा है और पुअर को पैसिव के अंदर रखा है। पुअर कैटेगरी में स्मॉल फार्मर, छोटे छोटे किसान, स्मॉल फार्मर आर पीजेंट, सर्वेंट्स नौकर, महिलाएं वुमेन एंड चिल्ड्रन। और रिच किड्स में जो थे वो बिग लॉर्ड बिजनेसमैन, बिग मर्चेंट्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब पूंजीपति और उद्योगपति, बड़े बड़े व्यापारी, ये लोग थे एक्टिव सिटीजन में। एक्टिव सिटीजन किसे कहते हैं आपको पता है? दैट पेड ए फिक्स्ड टैक्स टू द स्टेट एंड पार्टिसिपेट इन द इलेक्टोरल प्रोसेस, व्हाइल अदर पीपुल्स। अब हम आपको ये बता क्यों रहे हैं कि दिस सोशियो पॉलिटिकल अरेंजमेंट ऑफ एंटायर यूरोप वाज सच दैट, पूरे यूरोप की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था कुछ इस तरह की थी कि द अरिस्टोक्रेटिक क्लास enjoy or contain almost 80% of the total resources। पूरा जो आपका ये रिच क्लास था वो कुल आर्थिक संसाधनों का 80% हिस्सा उसके पास होता था। इट एंजॉयज ऑल काइंड्स ऑफ प्रिविलेज, इसके पास सारे विशेषाधिकार होते थे। और ये कि they have not to pay any kind of tax, और नोबिलिटी को, अरिस्टोक्रेटिक क्लास को किसी भी प्रकार की कर देने की छूट थी। और बाकी जो 80% आबादी थी वो पुअर थी, गरीब थी, जिसमें पीजेंट थे, किसान थे, टिनेंट्स थे, बटाई पर काम करने वाले किसान थे जिनका जो है भूमि पर कोई स्वामित्व नहीं होता था, और ये फ्यूडल सिस्टम के अंतर्गत काम करते थे। इसके अलावा हमें जो ध्यान देने वाली जो दूसरी बात है वो ये है कि हम जो है नेपोलियन जब फ्रांस की गद्दी पर बैठा, when the Napoleon ascended on the throne of France, it introduced reformatory measures. It designed a scheme to ensure administrative efficiency, economic and social political reform in the country, or in those area or regions which he had conquered and annexed to its territory। उन सारे क्षेत्रों को जिसको उसने जीता था और उसे अपने जो है फ्रांस में मिला लिया था, उन सारे क्षेत्रों में उसने इस एक कोड को, एक संहिता को, एक कानून बनाया और उसे लागू किया। नेपोलियन कोड, नेपोलियन कोड ऑफ 1804, इसी की पृष्ठभूमि में हम लोग जो है वहां पर नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है देखेंगे कि वहां राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ यूरोप में। तो नेपोलियन कोड की क्या खासियत थी? व्हेन नेपोलियन असेंडेड द थ्रोन, I told you that the Europe was fragmented into different regions, छोटे छोटे जो है भागों में विभक्त था, and mostly the people were neutral, ज्यादातर लोग निष्क्रिय थे, because they did not deem any kinds of change, because they have no right to challenge or question the authority of the conservative rule। वो conservative rules को किसी तरह से चुनौती नहीं दे सकते थे। Different kinds of censorship, different kinds of obstacles or the restriction have been imposed by the Napoleons or the ruling government। सरकार के द्वारा जनता के ऊपर तमाम तरह की आजादी पर उसकी पाबंदी लगी थी, विचारों की स्वतंत्रता की आजादी नहीं थी, प्रेस पर सेंसर लगे हुए थे, किसी भी तरह से राजा के जो है सत्ता को चुनौती देने की जो है कहीं से भी कोई भी अवसर किसी भी व्यक्ति के पास नहीं होता था। तो नेपोलियन ने कुछ इस बीच सुधार किए, हालांकि उसने लोकतंत्र को बर्बाद किया। He damaged the democratic fabric of the France and finally established monarchy in France, which have been converted or transformed by the peoples through the French Revolution in 1789। 1789 में लोगों के द्वारा क्रांति करके
जिस संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई थी, नेपोलियन ने बड़े सलीके से उसे समाप्त करके वहां पर तानाशाही की स्थापना एक तरह से की, एक तरह से फिर से वहां राजतंत्र को स्थापित किया। लेकिन उसने कुछ ऐसे अस्थाई परमानेंट चेंज जो है और पॉजिटिव चेंज जो है समाज में और आर्थिक जगत में किए, जो कि आने वाले किसी भी राजा के लिए उनको जो है इग्नोर करना, अनदेखा करना जो है संभव नहीं था। नाउ वी शैल स्टडी व्हाट वेयर दो चेंज या व्हाट वेयर द मेजर प्रोविजंस ऑफ द नेपोलियनिक कोड। नेपोलियनिक कोड की जो प्रमुख खास जो है धाराएं और उपबंध क्या थे उसको हम देखते हैं। नंबर 1, इट upheld the equality of law। इक्वलिटी, आप कह लीजिए इक्वलिटी। सबसे पहला जो चेंज लाया नेपोलियन ने, हर प्रकार के प्रिविलेज को समाप्त कर दिया। समाज में जितने प्रिविलेज थे, देयर वेर नो हाई एंड लो राइट नाउ। अब कोई भी छोटा बड़ा नहीं था, हर व्यक्ति के लिए एक ही कानून बनता था। एंड दी लॉ वाज इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल, और हर व्यक्ति के ऊपर कानून समान रूप से लागू होता था। बट यहां पर आप एक चीज का कंफ्यूजन मत रखिएगा दिमाग में कि इक्वलिटी राजनीतिक भी थी, क्योंकि अभी तक नेपोलियन ने जैकोबिन एक शॉर्ट इंटरिग्नम, जिसमें रॉबिस्पियरे की जो सरकार थी, उस एंटरिम को छोड़ के जिसमें 25 साल के ऊपर सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दे दिया गया था, उसको नेपोलियन ने समाप्त कर दिया। और इक्वलिटी का मतलब राजनीतिक समानता नहीं थी। यहां इक्वलिटी का, नेपोलियनिक कोड के संदर्भ में इक्वलिटी का मतलब सिर्फ इतना था कि व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता, जो कानून बना है वो सबके लिए बराबर है, न कि हर व्यक्ति को राजनीतिक समानता का अधिकार दे दिया गया था कि वो जाके इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा ले सके या सबको मत देने का समान अधिकार दे दिया गया था। राइट नाउ नो, more particularly the women, the poor class or the peasantry were not allowed or permitted to be exercised, or they have not been given the right to vote right now। अभी तक उनको इसका अधिकार नहीं दिया गया था, लेकिन उसने इक्वालिटी जो है लगाई कि हम हर प्रकार के प्रिविलेज का अंत करते हैं। एंड व्हाट एवर द लॉ और द लेजिस्लेशन और द डिसीजन शैल बी मेड दैट विल बी इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल पर्सन विदाउट एनी प्रेजुडिस एंड प्रीडायलेक्शन। जो सेकंड इसका सुधार था वो था इंटीग्रेशन ऑफ German Confederation। इसने काम और किया कि पूरा जो जर्मनी था, जो जिसपे जो है ऑस्ट्रिया और हंगरी का जो एम्पायर था, वो 39 प्रिंसिपलिटीज में डिवाइड था। उन सबको नेपोलियन ने जो है एकीकृत किया, इंटीग्रेट किया। और इसकी खासियत क्या थी कि इन ईच रीजन ऑफ दिस जर्मन कन्फेडरेशन हैव डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जैसे आप उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति व्यापार पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगे हुए थे, हर रीजन का अपना एक टैरिफ रूल था, टैक्स रेट थी, हर रीजन का अपना नाप तौल का अलग अलग बाट थे, मेजर के अलग अलग मेजरमेंट थे, हर क्षेत्र की अपनी करेंसी थी। एंड दिस काइंड ऑफ अनयूनिफॉर्मिटी और नॉन यूनिफॉर्मिटी in the unit of currency and measurements created a lot of obstacle in the development and growth of commerce and trade। व्यापार और वाणिज्य के विकास में ये बहुत बड़ी बाधा थी। जैसे अभी उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं 1833 में, इन 1833 अगर कोई व्यापारी हैम्बर्ग से फ्रैंकफर्ट अगर जाता है, हैम्बर्ग से फ्रैंकफर्ट अगर जाता है, तो उसको 11 कस्टम यूनियन, 11
11 कस्टम यूनियन को पार करना पड़ता था। अब आप सोचिए, उदाहरण के लिए अगर कोई चीज 10 रुपए की है हैम्बर्ग में और 11 बाई एन एवरेज, अगर हम एक कस्टम यूनियन पे 5% का टैक्स ऐड करें तो आप सोच लीजिए कि ये वस्तु जो है 65 रुपए में फ्रैंकफर्ट में मिलेगी, जो कि 10 रुपए की हैम्बर्ग में मिल रही है। उसके अलावा व्यापारियों को हिसाब किताब रखने में दिक्कत होती थी। एक और उदाहरण आपको दे रहे हैं एली का। एली एक लेंथ का मेजरमेंट था, जैसे अपने यहाँ मीटर है एसआई यूनिट में लेंथ को मेजर करने के लिए। उस समय फ्रांस में एली एली एक नाप थी, लेंथ थी। ये अलग अलग जो है प्रिंसिपलिटीज में इसकी अलग अलग मेजरमेंट थी। तो ये जो है हमारे कहने का मतलब, जिसका जो सेकंड इंप्रूवमेंट था कि द नेपोलियन इंटीग्रेटेड ऑल दीज 39 ऑफ जर्मन कॉन्फेडरेशन and introduced uniform measures इंटीग्रेशन ऑफ जर्मन कॉन्फेडरेशन, आप मान लीजिए जर्मन कॉन्फेडरेशन। इसके अंतर्गत इसने क्या किया कि जितने करेंसी थी, कुल 39 करेंसी थी, उनको घटा के 3 करेंसी कर दिया। अब केवल 3 मुद्राएं रह गई थी। तो व्यापारियों को इससे सुविधा हुई एंड द फ्लो ऑफ कैपिटल, मूवमेंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज अक्रॉस दी डिफरेंट रीजन्स बिकम वेरी स्मूथ एंड अनइंटरप्टेड। और दूसरा क्या किया कि मेजरमेंट का जो एली में भी उसने यूनिफॉर्मिटी लाया, जो कहीं पर 54.1 सेंटीमीटर होती थी एक एली बराबर, कहीं पर 65.7 होती थी सेंटीमीटर, कहीं पर 57 होती थी, कहीं पर 51 होती थी। तीन सारे जो है मेजरमेंट को यूनिफॉर्म उसने किया, एली का मान जो है फिक्स कर दिया। ये एक इंट्रोडक्शन ये था। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी को इंट्रोड्यूस किया कि प्रशासनिक जो छोटे छोटे जो प्रशासनिक अलग अलग रेशनलाइजेशन, आप कह लीजिए रेशनलाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जिसमें सहूलियतें हो गई कि जो अननेसेसरी पद होते थे उनको बीच के सारे पदों को समाप्त कर दिया गया। आप ये सोच लीजिए ए बी सी डी और ई, अगर यहां पर आपको यहां से कोई निर्णय, कोई डिसीजन आपको लेना है तो आपको पहले यहां बी के पास जाना, फिर बी से सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई आप पहुंचेंगे। तो उसने क्या किया कि सीधे जो है व्यापार और वाणिज्य को या लोगों की कंप्लेंट्स को उसकी इफिशियंसी और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए बीच का जो तमाम अननेसेसरी जो है डिजायरेबल जो ऑफिसेस थे उनको समाप्त कर दिया और सीधे जो है डायरेक्ट जो है टॉप ऑफिशियल से जो है आपका डायरेक्ट कांटेक्ट किया, जिससे जो है प्रशासन में काफी जो है सुधार आया। भ्रष्टाचार और करप्शन, ब्यूरोक्रेसी, लाल फीताशाही जिसको रेड टेपिज्म कहते हैं, इन सब में कमी आई। उसके अलावा उसने जो है सारे क्षेत्र में एक जैसी जो है यूनिफॉर्म जो है सिविल कोड लागू किए और इसके साथ साथ उसने एक सुधार और किया। आर्थिक क्षेत्र के ये इसके सुधार थे और सामाजिक क्षेत्र में हर व्यक्ति को सोशल जस्टिस का अधिकार दिया कि हर व्यक्ति को सर्फडम को उसने समाप्त किया, गुलामी प्रथा को उसने समाप्त किया, जिसको सर्फडम बोलते हैं, सर्फडम। So these were the certain revolutionary changes that were introduced in the France and that brought about a revolutionary change in the mindset of the people of the 18th century. तो इन सारे सुधारों से वहां के लोगों के अंदर जो है एक वैचारिक क्रांति आई और लोग अब पहले से ज्यादा जो है
उदारवादी ढंग से लिबरल रूप से सोचने लगे। तो पूरा जो समाज था दैट वाज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, दैट इज कंजर्वेटिव एंड सेकेंड जो था वो था आपका लिबरल ग्रुप। ये दो पार्ट हो गए समाज में। एक वो था कंजर्वेटिव ग्रुप, लोगों का वो ग्रुप था दैट बिलीव्ड इन दी क्लासिकल इंस्टीट्यूशंस, क्लासिकल वैल्यूज, जो परंपरागत रीत रिवाज, परंपरागत सामाजिक संस्थाओं, परंपरागत राजनीतिक और सामाजिक संस्थानों में विश्वास रखता था और उसे उसके मूल्य को कायम रखना चाहता था और परिवर्तन को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करना चाहता था। ऐसे लोगों को कंजर्वेटिव बोला गया। क्या बोला गया? कंजर्वेटिव। और ऐसे लोग जो समाज में रेडिकल परिवर्तन लाना चाहते थे, त्वरित प्रॉम्प्ट चेंज लाना चाहते थे, और इनका विश्वास जो है प्राचीन संस्थाओं में नहीं था बल्कि नए नए इनोवेटिव विचारों में था। और ये नए विचारों के अग्रदूत थे। दे लिबरल्स वेर द पायनियर ऑफ न्यू आइडियोलॉजी, इनोवेटिव थॉट्स, और जिनकी वजह से जो है समाज में वहां पर यूरोप में जो है नेशनलिज्म का उदय हुआ, राष्ट्रवाद का। और लिबरल ही ऐसे लीडर्स थे, दे वर द कैरियर ऑफ द वैल्यूज ऑफ द डेमोक्रेसी टू बी स्प्रेड नॉट ओनली इन यूरोप बट आल्सो अराउंड द वर्ल्ड। यही पूरी दुनिया में इन विचारों का प्रचार प्रसार करने वाले लोग थे जिन्हें लिबरल कहा गया। अब हमें लिबरलिज्म का मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे कि लिबरल कौन थे, लिबरल्स का जो है इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल मतलब क्या होता है, राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद से क्या अर्थ होता है, क्या एक्सप्लेनेशन है, सामाजिक क्षेत्र में लिबरलिज्म का जो है क्या अभिप्राय है, और आर्थिक क्षेत्र में लिबरल कौन लोग थे। तो ये तीनों चीजों का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे। थैंक यू राइट नाउ, थैंक यू सो मच।